sir. Champ, how are you? I'm good. How are you? I'm good, man. I'm good. Good to First see of you. all, Champ, yeah, same here. Thank you so much for doing this, yeah. No, it's a pleasure. It's a pleasure. We keep talking and keep fooling around. So why not have some fun with our fans? Yeah, exactly. So, before we start, आपने देखा बचपन में जब वो मम्मियाँ नहा धो के तैयार करती थी, बाल एक तरफ और सिर्फ और चलो जाओ तेल लगाकर. तो आज मैं तैयार रहा था, मेरी बीवी कहती खड़ी हो, मैं खड़ा. तो इसलिए ऐसा है. A lot of people ask me what's the reason of my hairstyle. This is the reason. So sweet. How is it going on? Very good. All well. Just finished training. Just in time. आपने टाइम दिया हुआ था. मैंने कहा लेट नहीं करना. स्किपर को लेट नहीं कर सकते. बस पहुंच गए अभी. Just finished training. Just doing a little bit every day. You know how it is. You can relax, but you can never really, go out of shape or off the path that you're on. So yeah, I know that you do it as well. We both try and keep up to it because eventually we have to get back to responsibility and just guiding our visions for our respective environments. So yeah, it's fun. It's fun. Again, how is the family in Family is Mumbai good. and in Delhi? Yeah. Yes, all good. Anushka is very well. Family in Delhi is also fine. They're all healthy and safe. Obviously, situation is a bit more tricky here, but yeah, we are safe. We are indoors. No real interaction with anyone outside. ठीक है, अच्छा चल रहा है. So far so good. Bangalore is fine. It is. We are actually in the green zone, but I think government ने advice दिया है कि बाहर ना निकले. So we're trying to stay at home. We're still waiting for everything to be fine and then only go out. Okay. Yeah. That's nice. तो ये जो series है, Champ, I bring 10 questions and I try my best to not be repetitive. But मैं 3 दिन से आपके इंटरव्यू देख रहा हूँ. इंसानों ने आपको जितना पूछना था, चाहे आपके दाढ़ी के बारे में हो, आपके लाइफ के बारे में हो, आपके कोई सवाल छोड़ा ही नहीं. तो मैं लगा हुआ हूँ सवाल पूछने के लिए. एंड बिफोर आई स्टार्ट, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जहां आपने एक इंटरव्यूअर को पूछा कि गो एंड चेक योर फैक्ट्स एंड देन आस्क मी. थोड़ा नाराज होते हुए. तो मैं आपको बोल दूं कि ये जो क्वेश्चन बनाए इससे मैं अकेला नहीं हूँ. तो अगर नाराजगी आई, मैं नाम भेज दूं जो लगे हुए थे सवाल बनाने में. आपको तो मैं बाद में मैसेज भी कर सकता हूँ ना. आपको तो मैसेज भी इसलिए वो लोग तो पूछ के. लेकिन मैं उनका नाम भी नहीं, मैं उनका नाम भेज दूंगा आपको जिन्होंने सवाल बनाए ये. अगर आपको लगे क्या है और ऐसी मूड आ जाए आगे सवाल पूछने के लिए, मैं नाम भेज दूंगा. ठीक है डन. चलिए Champ, let's start. Okay. So the first thing that I want to ask you, Virat, is money was always a fight growing up in my household, and I know for a fact it was almost the same at your house also. Now, what was the amazing ways that you can make money doing what you love? Because not many people have that. Yeah, pretty similar. I guess माहौल बहुत सेम था. एक मिडिल क्लास फैमिली में आपका एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं. प्लस मुझे याद है मैंने अपने फादर को बोला कि I think I play well. I love the sport. And मेरे दोस्तों ने भी बोला कि he's good enough. You should make him learn professionally. तो गए एकेडमी में एनरोल कर दिया. उसके बाद the initial challenges were monthly academy fee, अपना गियर खरीदने का, सामान खरीदने का पैसा. Then eventually what happened was when I played state cricket पहली बार, तब पर मैच पैसे मिलने शुरू हुए. So that's when I thought कि यार if you keep going up, you will obviously make a career out of this at some stage because you are totally committing your life to it. And my only aim was कि I have to give everything that I have. उसके बाद I will see कि अगर career बन गया है कि नहीं. But मुझे ऐसा कभी डाउट नहीं हुआ कि अगर ये नहीं करूंगा तो क्या करूंगा.
क्लैरिटी थी कि यही करना है एंड आई वेंट अहेड विद इट. फिर स्टेट क्रिकेट खेलते 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 when I ended up playing under 19 India, that's when I thought ki, you know, okay, because the first tour fee was a decent amount, like a big amount at that age for me. I was 16 when I played my first under 19 tour and that was to England. तो वो जो tour fee मिला उसके बाद my father opened an account for me, जाके joint account खुलवाया. तो तब मुझे थोड़ा realize हुआ कि यार नहीं, ये मेरा थोड़ा path इधर जा सकता है as an individual. You know, I can really make this into my career and you know, it's everything is going to unfold well if I just keep working hard. तो वहाँ से I think वो जो पहला टूर था, वहाँ से मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिली इसकी कि यार it is not going to be a waste of my time. You know, whatever मेहनत I have done, if I keep going forward, everything will be taken care of. तो जो स्कूटर में डैड ले आते थे, हाँ, पहले तो आप छोटे थे बोल के आपको लेके गए. हाँ, जब आप इतने बड़े हो गए कि आप बस में हांड सको, हाँ, तब भी वो जाते थे या आपको छोड़ देते थे बस में कि चलो निकलो आप बस में? नहीं, मैंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया था. मैं बसों में जाता था. पास एकेडमी पास थी तो रिक्शा में चले गए. साइकिल भी थी मेरी. साइकिल में पीछे वो कैरियर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हाँ, कैरियर में किड बैग ठूस के और फिर उस पे जाता था. फिर बाद में वो डफल बैग ले लिया जिसमें वो बैग साइड में डाले होते हैं, तो उस पे भी जाता था. बट अकाउंट तो ऑब्वियसली खोलने के लिए साथ में ले जाएंगे, तो स्कूटर पे लेके जाते थे मोस्टली, जो पास की जगह होती थी. बट कभी कभी मैचेस पे छोड़ देते थे बिकॉज जब कोटला में मैचेस होते थे ही यूज्ड टू प्रैक्टिस एट हाई कोर्ट. ही वाज प्रैक्टिस, आई मीन ही वाज अ लॉयर और उनका जो रोज का काम था हाई कोर्ट में था. ही हैड अ चेंबर. सो वहां पे कोटला पास में था तो मुझे छोड़ देते थे वहां पे गाड़ी में कभी कभी. वरना बस ऑटो ये सब तो रेगुलर था, या किसी और से लिफ्ट मांग लेनी, ये सब चलता रहता था. डीडीसी में पास था या टिकट नहीं लेना है, बाद में देखी जाएगी अगर पकड़े गए तो? नहीं, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया. हमारी शक्ल ऐसी नहीं थी कि हमें कोई देख के सीरियसली लेता ही नहीं था. हम साफ बोलते थे तो पकड़ लेते थे. हमें अब वो पर्सनालिटी होनी चाहिए ना, पर्सनालिटी होनी चाहिए कि बोले हाँ स्टाफ है. वो किसका स्टाफ है? एक बार बोला मैंने, मैं बस से निकल गया. उसने मेरे को ऐसे सवाल पूछा कि साला उसने बिलीव ही नहीं किया मुझे. मैं उतर गया बस से. मैंने भाई भागो यहाँ से. तो मैं कभी नहीं यूज कर पाया. नहीं, मैंने देखा बहुत है होते हुए. उन लड़कों की अलग ही और कॉन्फिडेंस होता था यार. उनसे वापस काउंटर सवाल नहीं होता ना, इसलिए वो चले जाते थे. मैं करता था, मैं डीडीसी पे टिकट लेता था. हाँ, तो उस टाइम पे अगर पकड़े गए तो 20 रुपए फाइन था. तो मेरे घर से मुझे मिलते थे 20 रुपए. हाँ, तो मैं सोचता था जब पकड़े जाऊंगा तो 20 रुपए दे दूंगा, या तो भागूंगा या 20 रुपए दे दूंगा. बहुत दिन चलता गया, एक बार पकड़ा गया, 20 रुपए दे दिए. फिर उन्होंने क्या किया, बढ़ा के कर दिया 50 रुपए. मैंने कहा अब तो मुश्किल हो गया, अब टिकट लेनी पड़ेगी. यार वो टाइम था यार. मुझे एक बार याद है, ये बस वाला इंसिडेंट होता था हमारी. लो जी, चहल यहाँ भी आ गए. हेलो भैया फ्रॉम होम. ये नहीं मानेगा. अबे भाई मान जा भाई, तुझे हर जगह घुसना है. कोई बात कर रहा हो बीच में इसका कमेंट जरूर आएगा. भाई ये जिस दिन ये चीजें नॉर्मल हुई ना, ये भागता ही दिखेगा रोडों पे. इसलिए घर नहीं आना वापस. ये भागेगा सिर्फ टिकटॉक ऑन करके. अरे मैंने इसका एक वीडियो देखा बिकॉज़ आई वाज कॉलिंग हिम टू गेट सम स्टफ अबाउट यू. मैंने इसका वीडियो देखा, कह रहा है कि मैं घर में नहीं आऊंगा, मैं होटल में रहूंगा. अब जब मैं खुलेगा मैं बाहर आऊंगा, मैं घर में नहीं आऊंगा. इसका काम हो गया है. इसके तारे वारे हिल गए कोई अंदर की, शॉर्ट सर्किट हुआ इसको. तो मैं आपको बता रहा था कि हमारी सोसाइटी जो थी जहाँ रहते थे हम, सामने उसके छबील लगती थी. छबील मतलब छबील मतलब it's a gathering where everyone comes together. There's a lot of things. नहीं, वो गुरपुरब के टाइम पे बेसिकली प्रसाद बनता है और रूह अफ़ज़ा वाला वो दूध के साथ मिला के वो ड्रिंक बनती है. ठीक है, सबको रोड पे पिलाते हैं. हाँ, छोले पूड़ी हलवा वाला होता है और रोड पे मिल रहा होता है. तो बेचारे जो साइकिल पे जा रहे होते हैं, गर्मी है, रिक्शा वाले, उनको सबको फीड किया जाता है लंगर टाइम. तो उसमें होता क्या था, बसें निकलती हैं तो बसें भी धीरे होती हैं यार, प्यास लगी होती है लोगों को. तो मैं वहां पे छबील पिलाता था, मुझे बहुत मजा आता था. तो छबील भर के मैं, आपने ट्रे पकड़ी हुई है, उसमें ग्लास है, चढ़ गए आप. एक बार क्या हुआ, बस में भीड़ इतनी थी. अब मैंने दिक्कत क्या हुई, मैंने गलती क्या कर दी, पहले मैंने ड्राइवर को पिला दिया. अब जैसे ही उसने पिया, उसने कहा बाहर में जा सारे, उसने अपना काम शुरू कर दिया, उसने बस चलानी शुरू कर दी. अब मैं छबील पिलाते 4 स्टॉप आगे छोड़ा, 3 किलोमीटर आगे वहां से वाला भागते आ रहा हूँ मैं. क्या चेक खाली हो गए मेरे, किसी ने गिलास नहीं दिए, ट्रे इधर, किसी गिलास उधर.
चेंज की, मुनीर का पकड़ी और चला गया छत्रसाल स्टेडियम। अच्छा। प्रैक्टिस करके फिर स्कूल गया, फिर स्कूल से वापस आया। मैंने बड़े बहुत वो मजा ही अलग था, से बहुत मजा करता था। So times. I know we are enjoying this, but if I have to ask you, how important was the role of your father in giving that confidence when you're growing up to be as a cricketer? यार my father was very clear कि पढ़ाई में उनका obviously उनका focus पढ़ाई में था, but he was very clear कि you have to study along with playing, and only when you can say कि I am 200% confident that I am going to be able to make a career out of this, only then will you solely focus on just doing one thing. But till that time I want you to work hard in both. तो उसके बाद जब results obviously आने शुरू हुए, and under 19 tours happened, and then he saw कि cricket ज़्यादा हो रहा है, he stopped saying anything to me, because लोगों से भी सुनते थे, कोच से feedback आता था, तो उन्होंने बोला यार कि ये chance देना चाहिए, तो support मुझे काफी मिला। प्लस दूसरी बात ये थी कि I mentioned it before also कि एक समय ऐसे था स्टेट क्रिकेट में बहुत लेफ्ट राइट ये वो सब बहुत चीजें होती है, many factors happen where things are not fair. I would just put it like that. I wouldn't go elaborate it too much. तो वहाँ पे एक opportunity था जहाँ पे obviously a certain someone chose to step out of the rules and say कि ये सिनारियो है, आपको अगर सिलेक्शन तो मेरिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा. सो ही अंडरस्टूड एंड ही इज अ गाय हु स्टडीड, मतलब वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़े, वैसा हाल था उनके घर में. वहां से उन्होंने मेहनत करके लॉयर बने, मर्चेंट नेवी में भी काम किया उससे पहले. तो मेहनत जिसने करी है उसको समझ ही नहीं आती है लैंग्वेज. ही डिडंट अंडरस्टैंड कि क्या है कि यहाँ कर दो वहाँ कर दो. ही सेड टू माय कोच कि अपने मेरिट पे खेल जाएगा तो बहुत है, वरना हमें नहीं खिलाना. ये सब मैं नहीं करूंगा. मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं बहुत रोया. मैं आई वाज ब्रोकन, बट दैट टॉट मी समथिंग दैट बॉस, ये दुनिया ऐसे चलती है, अगर आगे बढ़ना है तो वो करो जो कोई नहीं कर रहा. So that lesson he gave me, because you can only rely on your hard work, and that I saw from my father, who made a living, made a life for himself, and gave me the right teaching by actions. बोलना बहुत आसान होता है. So those little things ना put the right kind of attitude in me कि नहीं, मेहनत से आगे बढ़ना है. So I think that impact from him was huge, and obviously giving middle class family में क्या होता है, आप एक certain mindset हो सकता है कि नहीं यार आप focus करो, एक जॉब होनी चाहिए, that is fair, but to have the courage to say नहीं, अच्छा इसको करने दो for a while. I think that is all you can ask for as a child. So he gave me that for sure. So Champ, I'm sure you miss him almost every day in your life, but was there a moment आपको लगा कि यार काश आज मेरे डैड होते और वो देखते कि मैं ये अचीव किया या यहाँ पहुंचा? Is there any moment that he thought, I really wish my father could see this, because he was there in the times when I was growing up. He could see a little bit of Virat Kohli becoming Virat Kohli. But today, when I've achieved so much, not to show off, but just a feeling that I wish he could see what he was trying to build. Was there any moment, and I'm sorry if I'm making you emotional? No, not at all. I mean, it is what it is. I mean, I accepted it immediately when things happened, and obviously I went to play the morning that it happened. उसके बाद से यार realize until something big happens in your life, you sort of, True. I was 18. And उतनी मेच्योरिटी नहीं होती आपके अंदर कि आप रोज बैठ के सोचो कि क्या हो गया, because you're also focusing on what you need to do in your life, and you need to move forward. So I kept doing that. But when I played for India, when things started going well, I started thinking yaar कि what is it really that I could have done which meant something. And the only thing that keeps coming to my mind and to my heart regularly is कि whatever my father did for our family, for me, for all the brothers and sisters, children, for my mother, everything, for his side of the family, सबको संभालना and all that. The only thing I could have done for him was give him a life of great retirement and just relax. You don't need to do anything. तो जब आपकी पूरी जिंदगी करने में निकल जाए, and then someone from your family goes up to achieve something, जिससे आप all that मेहनत, you feel like यार I really feel grateful to God कि यार whatever I did, I somehow feel justification or
ग्रेटिट्यूड फ्रॉम गॉड. तो मुझे ऐसा लगता है कि और आप कुछ नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के लिए. यू कैन गो स्पेंड टाइम विद देम, बट दीज आर द थिंग्स यू कैन डू कि उनको एक कंफर्टेबल लाइफ मिले, कोई टेंशन ना हो. तो वो एक मुझे एक चीज रेगुलरली लगती है कि यार वो अगर मैं दे सकता हूँ उनको आज की डेट में, तो that's the biggest gift I could have given it back. True. Yeah. And I'm sorry I asked you this, Virat. नहीं, it's fine. I mean, I remember him in positivity. I never feel like I feel sad or emotional or something. Sometimes you miss him in a emotional way, but I always think positive, क्योंकि that incident to me was a blessing in my life. उस उम्र में ऐसा कुछ होना जहाँ आप अपना फोकस खो सकते हो, जहाँ पे आपको समझ नहीं आए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, वहां पे वो इंसिडेंट मेरे लिए ऐसा हो गया कि यार I have no other option in life. I have to keep going on this path. So yeah, I remember him well. That's well said. Chalo, from that note to a happy note.